get recorded. Okay, fine. We will start off with the Qiraat by Muhammad Faraz, who is a student of the MaxStars program. He is preparing for NEET right now. After which we will have an introduction by Shahid Pradhan, Hujjatul Islam, who is going to talk to us about what MaxStars is. MaxStars है क्या वो समझाएंगे हमें. उसके बाद सोहेल अजानी जो अनफाल फाउंडेशन के मेंबर है वो हमें मैक्सटास 2021 जो साइकिल हो चुकी है मतलब जो अभी कंटिन्यू हो रही है स्टूडेंट्स जो पढ़ रहे हैं उनके बारे में बताएंगे. और फिर ब्रदर फैजान सैयद जो लीड हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट के at Anfal Foundation, he will tell us about the current MaxStars 2022 program. After which we will have question answers. So आप लोग के पास अगर कोई भी क्वेश्चंस आते हैं ड्यूरिंग द सेशन आप लोग प्लीज उसको या तो चैट पर डाल दीजिए या नोट करके रख दीजिए. हम लोग एक साथ सारे क्वेश्चंस को आंसर करेंगे टुवर्ड्स द एंड so that by the time almost all your doubts will be clear. ठीक है. So we will start off by Qiraat. With Qiraat, just give me 1 second. I will share the surah. Brother Faraz, are you ready? Yes. Okay, fantastic. Let me just. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب ترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون
لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. Thank you, Faraz. Shahid bhai, you can start. Yeah. Are you on video? Okay, I will pin you. Yeah. Should I remove video or keep video? No, no, no. It's better if you use there. It's better. Okay. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وسيدنا أبو القاسم محمد وعلى آل الطاهرين طيما بقية الله في الأرض. आज हम लोग इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं कि मैक्सस्टार्स क्या है। मैक्सस्टार्स ये प्रोग्राम जो हमने शुरू किया है कि मौलाना कल्बे सादिक साहब से इंस्पायर होकर शुरू किया है। मौलाना कल्बे सादिक एक ऐसी शख्सियत थी कि जिन्होंने एजुकेशन के ऊपर अपनी उम्र भर उन्होंने काम किया, अपने आखिरी दम तक उन्होंने काम करते रहे और खासकर नॉर्थ इंडिया लखनऊ स्पेशली उन्होंने काफी स्कूल्स उन्होंने बनाई, एजुकेशन के लोगों को मोटिवेट किया और एक ऐसी आइडियोलॉजी बनाई कि लोग एजुकेशन की तरफ बढ़ जाए। जैसे आप लोगों को पता होगा मौलाना कल्बे सादिक साहब जो थे वो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के वाइस प्रेसिडेंट थे। एक मुस्लिम्स के अंदर एक डिमांड रहती थी कि हमें जो है वो रिजर्वेशन मांगना चाहिए, वी शुड हैव रिजर्वेशन एज शेड्यूल कास्ट एंड अदर ओबीसी है कि हमें भी होना चाहिए कि हमें भी एक रिजर्वेशन मिले। लेकिन कल्बे सादिक साहब ने हर वक्त उसकी मुखालिफत की। कल्बे सादिक साहब ने ये कहा कि हमें एक्सेलेंस की तरफ जाना चाहिए, ना कि रिजर्वेशन की तरफ। अगर हमारे अंदर एक्सेलेंस होगी तो ऑटोमेटिकली हमें बड़ी पोजीशंस मिल जाएगी, अच्छी जगह पर हमें एडमिशन मिल जाएगा, हमारे बच्चों को मिल जाएगा। लेकिन एक जद्दोजहद उन्होंने शुरू की थी, वही जद्दोजहद को हम लोग आगे लेके चल रहे हैं। लेकिन हकीकत जो है इंडियन टैक्स पेयर्स, इंडिया के जो टैक्स पेयर्स होते हैं, वैसे हर बच्चों के लिए मैं समझा दूं कि हर इंसान जो है वो टैक्स पेयर होता है। टैक्स पेयर मतलब कि जब आप एक चॉकलेट भी खरीदते हैं उसके ऊपर भी जीएसटी होता है, उसके ऊपर भी एक वैट टैक्स होता है और एक कैंडी भी खरीदते हैं तो उसके ऊपर भी जीएसटी होता है। सो यू आर पेइंग द गवर्नमेंट समथिंग व्हेन यू आर बाइंग समथिंग, एनीथिंग यू आर बाइंग। आप जो भी चीज खरीदते हैं कि आप गवर्नमेंट को कुछ देते हैं वो गवर्नमेंट का टैक्स होता है। और गवर्नमेंट के पास में जो टैक्स होता है वो अपनी बहुत सारी एक्टिविटीज के अंदर गवर्नमेंट्स लगाती है, जैसे मेडिकल के लिए जरूरत है, एजुकेशन के लिए जरूरत है, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जरूरत है, बहुत सारी चीजों के अंदर गवर्नमेंट अपना पैसा इन्वेस्ट करती है। तो एक बड़ा बजट एजुकेशन का जो गवर्नमेंट का है वो आईएनआईज में जाता है। इसे कहा जाता है इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, INI, इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। तो इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस में बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट्स आती है जैसे IIT, एम्स, फिर मैनेजमेंट की बड़ी बड़ी कॉलेजेस, IISc, इस पर बहुत सारी इंस्टीट्यूट्स है कि जो गवर्नमेंट के पैसों पे चलती है और ये टॉप इंस्टीट्यूट है। ये टॉप इंस्टीट्यूट से क्या होता है कि जो इंडिया के टॉप ब्रेन्स है वो उस इंस्टीट्यूट से बाहर निकलते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली जैसे आप लोगों ने हमारे प्रेजेंटेशन में देखा होगा कि ये INIs के अंदर मुस्लिम कम्युनिटी का जो रिप्रेजेंटेशन है वो बहुत ही कम है। मतलब कि हम लोग अगर फॉर एग्जांपल मुस्लिम्स का 14% तो 1.4 1.5 तक का उनका रिप्रेजेंटेशन INIs के अंदर है।
Shia would say they would be 1%, 2% or 3% anything, but इनका representation is 0.1 ऐसा कुछ होता है। तो हमारा रिप्रेजेंटेशन जो है इस जगह पर काफी कम है, इस इंस्टीट्यूट्स के अंदर काफी कम है। तो जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि मौलाना कल्बे सादिक साहब का ये ड्रीम था कि हमारे अंदर वो एक्सेलेंस क्रिएट हो और हम ऐसी इंस्टीट्यूट्स के अंदर जा सके, हमारे बच्चे जा सके और उसके अंदर हम पहुंच सके। एक्सीलेंस एक ऐसी चीज है कि जो इंसान के अंदर फितरी तौर पे होती है। इंसान के अंदर फितरी तौर पे होना यानी उसके नेचर के अंदर है, इंसान के नेचर के अंदर है कि एक्सेलेंस के अंदर, एक्सेलेंस उसके अंदर क्रिएट हो, एक्सेलेंस की तरफ वो बढ़े। उसकी एक बड़ी से बड़ी, सबसे बड़ी एग्जांपल क्या है कि इंसान, अगर आप हजरत आदम अलैहिस्सलाम के साथ के दौर के अंदर देखेंगे तो इतनी आशाइशें, इतनी साइंटिफिक रिसर्च और ये सारी चीजें नहीं थी। इंसान जो था वो केव में रहते थे और ये सारी चीजें थी, लेकिन इंसान क्योंकि उसके अंदर ये सलाहियत पाई जाती थी कि वो कमाल के तरफ पहुंचने की कोशिश करता है, वो एक्सेलेंस की तरफ पहुंचने की कोशिश करता है, तो वो आस्ते 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 वो बढ़ता गया। और दूसरा मतलब कि हम स्पिरिचुअल तौर के ऊपर भी ये कहा करते हैं कि अहले बैत अलैहिस्सलाम जो है वो इंसान कामिल है, वो कमाल की तरफ एक ऐसी शख्सियत है जो जिनके अंदर सरापा कमाल है, पूरी तरह से कमाल है, और वो हमारे लिए उसवतुल हसना बना के भेजेगा, वो हमारे लिए एक आइडियल बना के भेजेगा। तो हमें भी क्या करना होता है कि जो अच्छे जो लोग हैं उनको कॉपी करना होता है, उनको रोल मॉडल बनाना होता है, उनकी तरफ बढ़ना होता है। अब हम क्या करते हैं, कभी कभी मुश्किल कब हो जाती है कि हम अहले बैत अलैहिस्सलाम को मानते तो है लेकिन अहले बैत अलैहिस्सलाम की तरफ बनने की कोशिश नहीं करते। मतलब कि अगर वो अहले बैत सच बोलते थे हम भी सच बोलने की कोशिश करें, अहले बैत अलैहिस्सलाम दूसरों की तरफ नरम गोया रखते थे, हमें भी नरम होने की कोशिश करें। अहले बैत जो भी काम करते थे, जब भी काम कर सकते परफेक्शन के तौर पे करते थे। हमें भी कोशिश करना चाहिए जो भी हम काम करें वो परफेक्शन के तौर पे करें। हाँ, ये हो सकता है कि हमारा परफेक्शन का लेवल और उनका परफेक्शन का लेवल काफी अलग हो, लेकिन हमें कोशिश ये करना चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा अपने चीजों को बेहतर करने की कोशिश करें। इज दैट वॉइस क्लियर नाउ? Yes, sir, your voice is clear. You're audible. थैंक यू। Sir. तो हाँ, तो हम ये बात कर रहे थे कि अहले बैत अलैहिस्सलाम के जैसा बनने की कोशिश करना, ये एक अहले बैत के जैसे बनने की कोशिश करना, ये हमारे अंदर एक चीज है, ये हमारे दीन के अंदर की एक वो है कि जिस तरह से कुरान के अंदर ये बताया गया कि रसूल जो है वो उसवतुल हसना है, आपके लिए एक रोल मॉडल है। तो हमने ये काम करने की कोशिश करी कि भाई हम क्या काम करें कि हम जो है वो बेस्ट ऑफ बेस्ट एजुकेशन में काम कर सके। तो हमने क्या करना शुरू किया, देखना शुरू किया कि दूसरे कम्युनिटीज क्या कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, कैसे सक्सेस लेवल हासिल हो रहे हैं। तो हमने देखा बहुत सारे मॉडल्स हमने देखे कि लोग सुपर 30, रहमानी 30, लतीफी 40। तो हमने ये सोचा कि ये काम हम लोग भी करने की कोशिश करेंगे। मौलाना कल्बे सादिक साहब ने जो इतनी जहमतें की है दीन के लिए, कौम के लिए, हम भी उनके काम को, जो उनका जो उनका जो प्रोजेक्ट था उसको लेकर हम आगे बढ़ेंगे। उसी हवाले से हमने मैक्स स्टार्स का ये प्रोग्राम को लॉन्च किया कि हम एक्सेलेंस की तरफ पहुंचे। हमारे जो रिप्रेजेंटेशन है जो INIs के अंदर इतना कम है, वो एक इज्जतदार एक ऐसा हो जाए कि भाई हम लोग बोल सके कि भाई हाँ, IIT दिल्ली के अंदर हमारे 100 बच्चे पढ़ रहे हैं, IIT पवई में हमारे 100-200 बच्चे पढ़ रहे हैं, एम्स के अंदर हमारे 100-200 बच्चे पढ़ रहे हैं, IISc बेंगलोर में हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, कम से कम वो बोलने की वो करे। तो जैसा हमने ये देखा कि भाई ये जो मुश्किल है वो क्यों है, तो एक तो हमें समझ में आया अवेयरनेस नहीं होना, कि लोगों को ये पता नहीं होता कि क्या करना है, कैसे करना है, और ये इंस्टीट्यूट्स के अंदर भी हमें जाना है। क्योंकि एक आम फहम के अंदर लोगों को ये समझाया गया, ये बताया गया है कि थिंग विच इज गवर्नमेंट इज बैड एंड विच इज प्राइवेट इज गुड। तो कोई अगर गवर्नमेंट स्कूल में या म्युनिसिपलिटी स्कूल में जाता है तो म्युनिसिपलिटी स्कूल में जा रहा है वो। सो वो माइंडसेट हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। वो माइंडसेट से हम लोग ये कोशिश करते हैं कि हम भी कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में जाए रादर देन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स के अंदर। बट इन रियलिटी दैट इज कंप्लीटली रिवर्स। जो गवर्नमेंट बेस्ड इंस्टीट्यूट्स होती है वो पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए बेस्ट इंस्टीट्यूट होती है, प्राइवेट से बेहतर होती है। इसीलिए इतने तगड़े कंपटीशन एग्जाम्स रखे जाते हैं कि वो कंपटीशन एग्जाम्स को आप क्लियर करेंगे तब आप वो अच्छे इंस्टीट्यूट से पहुंच सकते हैं। जैसे मेडिकल है, मेडिकल के अंदर अगर आपके पास में नीट के अंदर अच्छा रैंक आएगा
नीट में अगर आपके पास में एक अच्छा रैंक आएगा तो आप कहाँ होंगे? एम्स में होंगे, सबसे बेस्ट रैंक होगा। तो दिस इज द बेस्ट Yes, इंस्टीट्यूट sir. ऑफ मेडिकल साइंस, बेस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। अब अभी अगर हम देख रहे हैं कि अगर एम्स के अंदर बेस्ट स्टूडेंट्स होते हैं, लेकिन अगर जिनके पास में अच्छा मार्क्स का आता तो कहाँ जाते हैं? वो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स के अंदर जाते हैं, कि जहां पर उनको करोड़ों डोनेशन भी देना पड़ता है, बट क्वालिटी इज आल्सो नॉट दैट लेवल। सिर्फ ये नहीं कि पैसा ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स को, स्टूडेंट्स को पहले से वो चीजों को समझना होगा कि हमें कैसे तैयारी करना है, किस तरह से हमें तैयारी करना है और किस तरह से हमें आगे बढ़ना है। तो ये है कि मेरा टाइम ज्यादा नहीं है मेरे पास में, बस यही मैं कंक्लूड करूंगा कि मैं बस बच्चों से ये कहना चाहूंगा कि हम लोग जो है, हमारे रोल मॉडल्स जो है वो अहले बैत अलैहिस्सलाम है। हमें शुजात यानी मतलब अहले बैत अलैहिस्सलाम से हमने क्या चीज सीखी है? शुजात, करेज। यू शुड हैव करेज। अब एक स्टूडेंट अपना करेज कहाँ दिखाएगा? ओलंपियाड्स के अंदर हिस्सा लेकर, कि हम करेजियस बने, and we should participate everywhere. We should participate in every competition and every Olympiads which is happening in our school. हमें जो भी ओलंपियाड्स के अंदर हिस्सा लेने की कोशिश करें। we should Shahid bhai, please unmute yourself. सॉरी वो कॉल आ गया था इसलिए म्यूट हो गया था। मैं ये कह रहा था कि हमारे बच्चों का बस लास्ट मैसेज ये है कि वी शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन एनी ओलंपियाड्स और इन एनीथिंग, कि वहां पे हमारा करेज हमारा बाहर आएगा, और हम जब पार्टिसिपेट करेंगे तो हम बहुत सारी चीजें सीखेंगे। हम अगर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो हम सीख नहीं पाएंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया और ये सारी चीजें समझने पड़ी। अभी आगे और क्लैरिटी, आप चीजों को आपको क्लैरिटी आ जाएगी जब आप सोहेल भाई और फैजान भाई का प्रेजेंटेशन देखेंगे। इफ एनीथिंग इज देयर, वी आर देयर फॉर योर क्वेश्चन एंड आंसर्स इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज। Thank you, sir. Thank you, Shahid bhai. Sohail bhai, you can start. I'll be sharing the screen. You can start off by explaining the stages of the process. Sohail bhai, are you there? Yeah, just a minute. No? Sister, can you present slides which I have to go through? Yes, for sure. They're already being displayed. Can you be on video so I can put you on spotlight? Right. Assalamu alaikum everyone. Assalamu alaikum, sir. अस्सलाम वालेकुम सर। जैसा अभी शाहिद भाई ने बताया कि हमारा रिप्रेजेंटेशन INIs में काफ़ी कम है और एफर्ट्स जो है वो कम्युनिटी लेवल के ऊपर में वो लेने की ज़रूरत थी। सो इट इज़ लाइक वी नो दैट द INIs हैव दैट मच ऑफ इम्पोर्टेंस, जिसकी तरफ में हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। कि जैसा फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट ये कहता है कि मैं IIT में पढ़ता हूँ, या फिर वो ये कहता है कि मैं IIMs में या फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में या फिर एम्स से मैं PG कर अपना MBBS कर रहा हूँ, या फिर मैं PG कर रहा हूँ, या फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस से वो इंजीनियरिंग का कुछ बेहतरीन कोर्स करता है। तो उसका इम्पोर्टेंस या उसका जो वैल्यू है वो इन इटसेल्फ लोगों के बीच में भी, बल्कि खुद हमारे जो इंडियन कंटेक्स्ट है, एजुकेशन कंटेक्स्ट के अंदर में भी उसकी वैल्यू काफ़ी हाई होती है। सो इट इज़ लाइक वी आर नॉट सेइंग कि यहाँ से जो बच्चा नहीं पढ़ेगा या फिर यहाँ से जो बच्चा पास आउट नहीं करेगा उसकी वैल्यू कम रहेगी, बिकॉज वो दोनों एक अलग डिस्कशन और डिबेट रहता है। बट giving the importance or the evaluation pattern in which a student is graded right now in our society,
उसके हिसाब से जो टॉप स्टूडेंट्स रहते हैं हमारे कम्युनिटी के अंदर में, वो कम्युनिटी या हमारी सोसाइटी में आज फॉर एग्जांपल 10th के अंदर में और 12th के अंदर में आज जितने भी बच्चे रहेंगे उसमें से टॉप क्लास बच्चों को निकाल करके उनको बेहतरीन एजुकेशन देने के लिए जो इंस्टीट्यूट्स बने हैं उसमें एडमिशन लेना एक चैलेंज है। और हमारे यहाँ के बच्चों को भी वो एग्जाम्स क्रैक करके क्लियर करके उसके अंदर में एंट्री लेना एक टास्क है। सो हम लोग ने ये डिसाइड किया था कि हमारे बच्चे लोग, पहले एक बेसिक स्टडी है कि क्यों हमारे बच्चे लोग एग्जाम क्लियर नहीं कर पाते। ये भी जैसे शाहिद भाई ने बताया था कि INIs के अंदर में हमारा रिप्रेजेंटेशन है 0.1% है। 0.1% इज ऑलमोस्ट 0 के करीब करीब ही हुआ। तो उसका रीजन ये है कि जो एग्जाम होती है, जो IITs और लेट्स से नीट या फिर JEE की जो एग्जाम होती है, उसके लिए पहले से प्रिपरेशन की जरूरत होती है। अगर मैं बोलूँ कि आज नीट का एग्जाम है इन द मंथ ऑफ मार्च और मैं जनवरी 15 को बोलता हूँ कि चलो मैं नीट के एग्जाम में मैं पार्टिसिपेट करता हूँ और मैं टॉप 100 के अंदर में आ जाऊंगा, तो दिस विल बी लाइक एक करीब करीब इम्पॉसिबल चीज हो जाती है, बिकॉज उसके लिए प्रिपरेशन लगती है। और आपका जो कंपटीशन रहता है वो इंडिया के आप पूरे इंडिया के अंदर में करीब करीब 10 से 12 लाख स्टूडेंट्स जो बैठते हैं उनके साथ में रहता है, तो उनको कॉम्पीट करना एक बहुत बड़ा चैलेंज रहता है। तो इसीलिए एक पैटर्न हम लोग ने डिसाइड किया था कि हम लोग 8 to 10th के जो स्टूडेंट्स रहेंगे उनको एक ओलंपियाड ऑनलाइन एक एग्जाम कंडक्ट करेंगे। वो ऑनलाइन एग्जाम जो कंडक्ट होगी, वो ऑनलाइन एग्जाम के अंदर में जो टॉप 20 क्वालिफाई करेंगे ना उनको स्टेज 2 के लिए लेके जाएंगे। तो हम लोग ने ये एग्जाम जो है वो पिछले साल लास्ट ईयर जब कोविड था और लोगों को कहीं सेंटर पे बुला करके उनकी एग्जाम लेने का फिजिबिलिटी नहीं थी, तो हम लोग ने ये ऑनलाइन कंडक्ट किया था। एंड देन उसके अंदर में हम लोग का बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन रहा। हम लोग ने लास्ट ईयर जो था वो 5th to 10th किया था, ये बार हम लोग प्लान कर रहे हैं 8 to 10th करने का। तो 5th to 10th का जो एग्जाम हुआ था उसके अंदर में काफी अच्छा पार्टिसिपेशन था। बच्चों ने जो टोटल पार्टिसिपेट किए थे उसमें से हम लोग ने 20% स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया और उनको सेकेंड राउंड के इंटरव्यू के लिए लिया। सेकेंड राउंड में क्या हुआ, सेकेंड राउंड के अंदर में कुछ भी नहीं, बस ना छोटी-छोटी बात। हाँ। सेकेंड राउंड के अंदर में उन लोगों का वीडियो इंटरव्यू हुआ और वो वीडियो इंटरव्यू होने के बाद उनसे लाइक लाइव क्वेश्चन एंड आंसर सेशंस हुआ। सो उसे फॉर एग्जांपल किसी बच्चों को ये पूछा गया कि फिजिक्स का क्वेश्चन के अंदर में कि आप बताइए एंगल ऑफ बैंकिंग क्या होता है, फॉर एग्जांपल दिस इज जस्ट अ केस स्टडी और से एग्जांपल। या फिर उसको पूछा गया कि आप बताइए कि केमिकल रिएक्शन में व्हेन कार्बन रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन तो उसके बाद में उसका रिजल्ट्स क्या होगा। तो या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में, या फिर जो भी जनरल क्वेश्चंस रह सकते हैं 8th के स्टैंडर्ड के स्टूडेंट के लिए उसके हिसाब से और 10th के लिए उसके हिसाब से, 9th और 10th के लिए। तो अकॉर्डिंगली they have been judged based on the replies which they have provided। और जब सेकेंड स्टेज कंप्लीट हुआ तो हम लोग ने स्टूडेंट को जो क्वालिफाई हुए थे उनके साथ में उन लोग का पेरेंट्स के साथ में बात की। एंड देन जो 8th और 9th के स्टूडेंट थे, 8th और 9th के स्टूडेंट्स को हम लोगों ने ऑनलाइन पैटर्न के ऊपर में हम लोग ने ये किया कि हमारी क्लासेस ऑर्गेनाइज करे थे और 8th और 9th के स्टूडेंट्स ने वो ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू बेनिफिट उठाया। ऑल्दो वो जितना अच्छे से होना चाहिए था उतने अच्छे से नहीं हो पाया। वी आर स्टिल स्ट्रगलिंग और उसको स्ट्रेंथन करने के लिए हम लोग अभी भी कोशिश कर रहे हैं। इंशाल्लाह ये साल 8th और 9th के लिए हम लोग के कोर्सेस और पैटर्न इंशाल्लाह अच्छे रहेंगे, क्योंकि हम लोग के कुछ ग्रुप्स के साथ में और कुछ टीचर्स के साथ में डिस्कशंस चल रहे हैं। एंड जो लोग 10th में थे लास्ट ईयर उन लोगों के लिए हम लोग ने रेसिडेंशियल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, टॉप 30 स्टूडेंट्स फ्रॉम अक्रॉस इंडिया। और वो टॉप 30 स्टूडेंट्स जो थे वो यानी अभी इस साल वो लोग 11th के अंदर में है, तो 11th में उनके लिए 11th में अभी ये साल रहेंगे और 12th में नेक्स्ट ईयर रहेंगे। तो 11th के अंदर में जो बच्चे हैं जो अभी हमारे साथ में रेसिडेंशियल प्रोग्राम के अंदर में, वी हैव प्रोवाइडेड देम विद फैसिलिटीज एट फोकस एकेडमी इन हैदराबाद, जहाँ के ऊपर में उनको रहने का, खाने का और स्टडीज का सभी फैसिलिटीज प्रोवाइड की है। जहाँ के ऊपर में हमारे बहुत अच्छे टीचर्स हैं जो उन लोगों को रेगुलरली ट्रेन करते हैं कि किस तरह से उनका रेगुलर शेड्यूल पूरा रहे और अलग अलग कंसेप्ट और टॉपिक्स जो है हर सब्जेक्ट का, स्पेशली लेट्स से नीट के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं उनको नीट के लिए
फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, और जो लोग IIT जी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स पे स्पेशल ध्यान देके उनको वो पोर्शन कंप्लीट करने के साथ साथ वो किस तरह से, सो दैट पार्ट इज डिवाइडेड इनटू लाइक, जैसा भी अभी स्लाइड आप देख रहे होंगे कि फाउंडेशन मजबूत करने के लिए हम लोग ने 6 to 10th के लिए एक ऑनलाइन वो किया था, तो अभी जो 8, 9, 10th के लिए रहेगा, और जो 10th क्रॉस करके 11th में जाएंगे उनके लिए मैक्सस्टार सुपर 30 का जो हम लोग ने किया है, उसमें नीट और JEE के लिए हम लोग ने प्रिपरेशन के लिए उनको कोर्स किया. सो इट इज लाइक, होप यू गाइज नो व्हाट इज नीट. नीट इज नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट, सो जो कि आपको मेडिकल कोर्सेज के लिए काम में आता है. जो मेडिकल जिनको डॉक्टर बनना है या MBBS करना है और मेडिकल फील्ड में जाना है, उनके लिए मैंडेटरी है कि वो नीट के थ्रू पास ऑन करे. कुछ स्टेट्स के अंदर में ऑल्दो नीट के ऊपर में अभी भी डिस्कशन और डिबेट चल रही है, बट मेजोरिटी अगर आपको एम्स में या फिर IMIs में जाना है मेडिकल फील्ड के अंदर में, तो आपको नीट देना पड़ेगा. अगर आप नीट नहीं देते हैं और आप चाहते हैं कि आप इंजीनियरिंग के अच्छे इंस्टीट्यूट्स के अंदर में जाए, तो आपको JEE देना पड़ेगा, विच इज जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जो आपको इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर में एडमिशन देने के लिए रहता है. ऑल्दो ये दोनों भी बेस जो होता है वो आपका सिलेबस के ऊपर से रहेगा. आपने जो 8, 9, 10, एक्चुअली नॉट 8, 9, 10, बट आपने फर्स्ट स्टैंडर्ड से जो 10th स्टैंडर्ड तक के पढ़ा रहेगा और जो 11th में पढ़ने वाले रहेंगे, वो सब चीजें आपकी बेसिक्स क्लियर रहना चाहिए. अगर आपकी बेसिक्स क्लियर रहेगी तो आप ये एग्जाम्स क्लियर कर पाते हैं. इसीलिए हम ये जो कोर्स है जो हम लोग अभी ये ले रहे हैं, आप पढ़ेंगे मैक्सस्टार्स. तो व्हाट इज मैक्सस्टार्स? मैक्सस्टार्स इज, इट प्रिपेयर्स यू फॉर दीज टाइप ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. इसमें क्या होगा कि आप सिलेबस को जब गो थ्रू करेंगे तो सिलेबस के अंदर में आपका मेजर कंसंट्रेशन रहेगा आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी और आपका लॉजिकल रीजनिंग के ऊपर में. ये 5 चीजों के ऊपर में आपका रहता है. तो हम लोग ने लास्ट ईयर जो ये किया था, फर्स्ट स्टेज की एग्जाम जो थी वो 14 मार्च को 2021 को हम लोग ने कंडक्ट की थी, जिसके बाद में हम लोग ने टॉप 100 स्टूडेंट्स को क्लियर किया था स्टेज 1 में, और उन लोगों ने स्टेज 2 का एग्जाम दिया था. उसमें से हम लोग ने टॉप 30 को सिलेक्ट किया, और वो टॉप 30 एक्चुअली बहुत सारे लोगों ने ये जो हैदराबाद के अंदर में लॉजिंग, बोर्डिंग और रेसिडेंशियल प्रोग्राम था, उसके लिए एग्री नहीं हुए ड्यू टू सम रीजंस के पहली बार घर से बाहर जा रहे थे और बहुत सारे उनको हेजिटेशंस थे. तो लेकिन फिर बाद में हम लोग ने जब बात किया पेरेंट्स के साथ में, ये किया, उन लोगों ने विजिट किया सेंटर, और सेंटर देखने के बाद में इंशाल्लाह ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन हम लोग वीडियोस वगैरह भी आपको दिखाएंगे, उनके बाइट्स भी दिखाएंगे कि बच्चे लोगों का भी रहने का वहाँ के ऊपर में इंतजाम है और जो क्लासेस का इंतजाम है वो किस तरह से किया गया है. वो इंशाल्लाह आप लोग देखेंगे तो आपको भी लगेगा कि दिस इज वेरी गुड फैसिलिटीज, और यहाँ के ऊपर में सब चीज़ बहुत अच्छी मिल रही है, जिसका बेनिफिट हमको लॉन्ग रन में मिलेगा. तो इंशाल्लाह ये सब चीज़ें कवर अप करके ये होता है कि जिस तरह से बच्चों को एनवायरनमेंट चाहिए स्टडीज़ का, कि आप वहाँ के ऊपर में फ्रेंडली एनवायरनमेंट के अंदर में, और एक जो माहौल चाहिए स्टडीज़ के लिए, वो वहाँ पे आपको प्रोवाइड होता है, आपको मिलता है. और जो दूसरे इंस्टीट्यूट है जो प्रोवाइड करते हैं, उसके कंपटीशन के अंदर में आपको उस तरह का माहौल मिलता है. और टीचर्स जो है अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छे हैं, जिनको क्लैरिटी है सब्जेक्ट के अंदर में और काफ़ी एक्सपीरियंस रखते हैं. तो इंशाल्लाह अगर पेरेंट्स है यहाँ पर साथ में अटेंड कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए भी ये रहेगा कि आप भी अपने बच्चों को इंशाल्लाह बिना किसी हेजिटेशन के आप वहाँ पर सेंड कर सकते हैं. और जो बच्चे वहाँ पर पढ़ रहे हैं उनके भी अगर आप टेस्टिमोनियल्स देखेंगे तो वो भी काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ के ऊपर में स्टडीज एंजॉय कर रहे हैं, और उनके रिजल्ट्स भी काफ़ी अच्छे हैं. इंशाल्लाह जैसे ही हमारा फर्स्ट रिजल्ट आएगा नेक्स्ट ईयर, जो अभी हमारी फर्स्ट बैच चल रही है, नेक्स्ट ईयर सेकंड बैच में जाएंगे, तो इंशाल्लाह उसके बाद में और क्लैरिटी उसके ऊपर में आएगी. इंशाल्लाह इसके बाद में हम लोग 2022 में अभी हमारी क्या तैयारी है उसके ऊपर में बात करेंगे. फैजान भाई इंशाल्लाह उसके ऊपर में ज़्यादा तफसील से रोशनी डालेंगे. थैंक यू. Thank you, Sohail bhai. Faizan bhai, I will continue the presentation. If you can come on video, I will spotlight you. Yes, sister, I'm already there on video. So Okay, fantastic. you can yeah, put the spotlight. Yeah, if you can move the slides. Yes. Is it visible? We are on Maxstars 2022.
You can start. Assalamu alaikum everyone. Assalamualaikum sir. Walaikum assalam. वालेकुम अस्सलाम। तो जैसे कि शाहिद भाई और सोहेल भाई ने एक्सप्लेन किया है कि हमारा ये जो प्रोग्राम है, दिस इज बेसिकली यू नो टू स्ट्रेंथन your chances in getting one of the, or say the few institutes which are of national importance, and it depends whether you want to do मैं हिंदी में बोलूं चलेगा आप लोगों को सबको? Yes sir. हिंदी में ही sir बोलो। जी हाँ, तो हमारी कोशिश ये है कि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा बेहतरीन तरीके की एजुकेशन प्रोवाइड करें, और आपका जो बेस है और कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग जो है उसको किस तरह से हम लोग मजबूत करें, ताकि आप जब इस तरह के ओलंपियाड या इस तरह के एंट्रेंस एग्जाम्स में पार्टिसिपेट करें तो आप कुछ जो टॉप के स्टूडेंट्स होते हैं उसके अंदर आए और आपको जो है अच्छे इंस्टीट्यूट्स में जाने का मौका मिले। तो हमारा ये जो पूरा प्रोसेस है, जैसे सोहेल भाई ने एक्सप्लेन किया कि हमने लास्ट ईयर स्टार्ट किया और उसमें कुछ बच्चे थे जिनको जस्ट होल्ड अ मिनट, सॉरी। सो जो बच्चे उन्होंने पार्टिसिपेट किया उसमें से 5th से लेके 9th के लिए हमने फाउंडेशन प्रोग्राम किया, जहाँ पे हम लोग मैथ्स, इंग्लिश और साइंस की जो बेसिक्स हैं उसको ज्यादा मजबूत करते हैं, ताकि आप जिस तरह से आगे जाएं तो आपको उसकी हेल्प मिले। दूसरा है हमारा जो रेसिडेंशियल प्रोग्राम है 2 साल का, वो है जो अभी इस वक्त बच्चे एकेडमिक ईयर 21-22 में जो अभी 10th ग्रेड में है उनके लिए। तो ये इस तरह से होता है ताकि आप जो अभी सर 9th में है लाइक, और सर नेक्स्ट ईयर मतलब इंशाल्लाह इस साल मार्च तक के 10th बेटा आपके सारे क्वेश्चंस हम लोग एंड में लेंगे, आप लोग क्वेश्चंस होल्ड करिए, एक बार हम एक्सप्लेन कर देते हैं, फिर इंडिविजुअली हम लोग एक एक करके सारे क्वेश्चंस लेंगे। इंशाल्लाह आपको बता देंगे कि आप कौन से साल किस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल होंगे, ठीक है। तो हमारा ये जो प्रोग्राम है इस साल जो है वो उसके रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो गए हैं। हमारा एग्जाम का जो डेट है वो है 13 Feb 2022, और जो लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन की वो है 16 Jan। एक वीक और बचा है। आप लोग कोशिश करें कि आपके जो भी फ्रेंड्स या रिलेटिव्स में होंगे उनको भी इसके लिए रजिस्टर करवाएं, और उसके बाद जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, आपका डेट क्लोज हो जाएगी रजिस्ट्रेशन की, तो आपको सारी इंफॉर्मेशन जो है उसके आगे के वो ईमेल पे दे दी जाएगी, और आपके जो नंबर्स हैं हमारे पास उसके साथ में हम लोग ब्रॉडकास्ट और व्हाट्सएप ग्रुप्स भी क्रिएट कर देंगे, ताकि उसमें सारी इंफॉर्मेशन टाइमली पोस्ट हो जाए। सबसे इम्पोर्टेंट अभी के लिए है कि आप उसमें जाके रजिस्ट्रेशन करें, और वो रजिस्ट्रेशन करने के लिए एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करें। अब एग्जाम्स जो होंगे उसका जो पूरा सिलेबस है वो सारा जो है हमारी वेबसाइट पे है। वेबसाइट का लिंक यहाँ पे भी दिया हुआ है, आपको हम बोल भी देते हैं। इट इज maxstars.in, MAKSTARS.in। आप किसी भी ब्राउजर पे जाके ये लिंक डालेंगे, आपको वेबसाइट ओपन हो जाएगी, और वहां पे सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है। आपको एग्जाम की डेट्स, एग्जाम का प्रोसेस, सारा सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है। एग्जाम्स जो होंगे वो 2 स्टेज में होंगे। फर्स्ट स्टेज का जो एग्जाम होगा वो ऑनलाइन होगा, वो किसी ऐप या वेब ब्राउजर के थ्रू होगा, और वो एग्जाम में जो बच्चे क्वालिफाई करेंगे उसको राउंड 2 में जाना होगा, और राउंड 2 जो होगा वो पर्सनल इंटरव्यूज होंगे जो हमारे क्वालिफाइड टीचर्स हैं वो डायरेक्टली कंडक्ट करेंगे। तो ये 2 स्टेज का प्रोसेस होगा। आपको सेकेंड स्टेज पे जाने के लिए फर्स्ट स्टेज क्वालिफाई करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये प्रोग्राम जो है वो ग्रेड 8 टू ग्रेड 10th में जो बच्चे हैं अभी उनके लिए है। 8th और 9th जो होंगे उनको फाउंडेशन प्रोग्राम दिया जाएगा, और 10th में जो बच्चे अभी हैं उनको 2 साल का रेसिडेंशियल प्रोग्राम जो कि हैदराबाद में होगा फोकस एकेडमी के साथ में, वहां पे आपको 2 साल के लिए रेसिडेंशियल प्रोग्राम लेना होगा। रेसिडेंशियल प्रोग्राम के लिए हम लोग ऑनलाइन ऑप्शन ऑफर नहीं करते। आपको फिर से एक बार डेट्स रिपीट कर देते हैं। 16 Jan जो है वो लास्ट डेट है रजिस्टर करने के लिए, और उसके बाद 13 Feb को हमारा
फर्स्ट स्टेज का एग्जाम होगा। ओके सर। नेक्स्ट। तो जस्ट एक ब्रीफ हम एक्सप्लेन कर देते हैं। जो हमारे कोर फैकल्टीज हैं, इनके अंदर और भी टीचर्स हैं जो अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए इनको हेल्प करते हैं, बट ये हमारे कोर टीचर्स हैं। जैसे नकी अली सर हैं, उनका ऑलरेडी मास्टर्स है, 25 साल का एक्सपीरियंस है उनका। वो सब्जेक्ट जो पढ़ाते हैं वो केमिस्ट्री में है। उनके प्रीवियस इंस्टीट्यूट्स में वो जहाँ पढ़ा चुके हैं उसकी आपको यहाँ पे सारी डिटेल्स दी है। दूसरा जो हमारे मैथमेटिक्स के सर हैं वो है सैयद साजिद नकवी सर। 30 साल का एक्सपीरियंस है उनका, और उन्होंने भी इससे पहले काफी अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ाया हुआ है। तीसरे हमारे दिलावर सर, जो कि बीई है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। 6 साल का एक्सपीरियंस है उनका, फिजिक्स पढ़ाते हैं वो। और उनका भी पुराना एक्सपीरियंस जो है वो रेजोनेंस, जो कि IIT जी के लिए प्रिपेयर करता है, वहां पे ऑलरेडी वो पढ़ा चुके हैं। उनका कोटा का भी एक्सपीरियंस है जहाँ पे वो बंसल क्लासेस में पढ़ाते थे। फिर हमारे जो बॉटनी के सर हैं वो अजमेर शरीफ सर हैं। उनका जो प्रीवियस इंस्टीट्यूट है उसमें वो MS जी और नीट की प्रिपरेशन के लिए बच्चों को तैयार करते थे। तो हमारे पास जो हमारे फैकल्टी है वो काफी क्वालिफाइड हैं, उनके काफी अच्छे एक्सपीरियंस है, और वो बच्चों के साथ में काफी टाइम स्पेंड करते हैं। उनके जो बेसिक्स है वहां से उनको किस तरह से उनके फाउंडेशन को मजबूत करते हुए उनको किस तरह से कंपटीशन के लिए तैयार करना है, उसके लिए वो 2 साल आपके साथ में मेहनत करेंगे। ये हमारे फोकस एकेडमी जो हैदराबाद में है उसकी कुछ तस्वीरें हैं, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्लासरूम है, क्लासरूम्स हैं। वहाँ पे हमारे पास लॉजिंग एंड बोर्डिंग के भी ये हैं, जहाँ पे हम डॉर्म्स में बच्चों को रखते हैं। जो डॉर्म्स हैं वो भी बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग हैं और अलग अलग फ्लोर्स पे हैं, तो हमारे मतलब वो सिक्योरिटी का भी ख्याल रखा जाता है। फिर 1-on-1 सेशंस के लिए डिफरेंट स्मॉल एरियाज हैं जहाँ पे आप टीचर्स के साथ में आपके डाउट क्लियरिंग सेशंस वगैरह कर सकते हैं। जितने भी क्लासरूम्स हैं उसमें कुछ क्लासरूम ऐसे हैं जो कि ऑडियो विजुअल्स के लिए भी अच्छे से एनेबल्ड हैं, जहाँ पे हम पैना बोर्ड प्रोवाइड करते हैं, तो ताकि टीचर्स जो आपको पढ़ा रहे हैं उसी वक्त वो अच्छे से उसको एक्सप्लेन करने के लिए जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है वो भी कर सके। सो ये कुछ तस्वीरें हैं। इंशाल्लाह जब आप क्वालिफाई होंगे और आप जब यहाँ आएंगे तो आपको बहुत ही अच्छा महसूस होगा। नेक्स्ट स्लाइड। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग का जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है उसको आप लोगों को अभी कंप्लीट करना है। इसमें से जो बच्चे ऑलरेडी रजिस्टर कर चुके हैं वो अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, क्लासमेट्स जहाँ पे भी बताना चाहें उनको ये इत्तला करें और उनको ज्यादा से ज्यादा नंबर्स में रजिस्टर करवाएं, ताकि जितने भी ज्यादा बच्चे हैं उनको इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने का मौका मिले। हम आपको एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन भी दे देते हैं जो हमारा रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने रजिस्टर तो किया है एग्जाम में, मतलब वेबसाइट पे, लेकिन उन्होंने अपनी इंफॉर्मेशन फिल नहीं की है। तो एक मिनट सर मैंने सर ओपन किया था बट सर उस पे शो कर रहा है कि रजिस्ट्रेशन फॉर क्लोज। तो उसमें अगर कुछ इश्यूज आते हैं तो हमने जो वेबसाइट पे हमारा नंबर दिया हुआ है वो वेबसाइट पे जाके आप वहां पे उस नंबर पे जो व्हाट्सएप है उस पे आप ये करिए, इन्फॉर्म करिए। इंशाल्लाह जो भी आपके क्वेरीज है वो वहां से हैंडल कर ली सर ऑर्गेनाइजेशन कोड क्या है, समझ नहीं आ पा रहा। ऑर्गेनाइजेशन कोड बेटा आपको उसमें कुछ नहीं करना है, हम आपको पहले एक बार एक्सप्लेन करते हैं, उसके बाद आपके जो भी क्वेरीज होंगे हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन में ले लेंगे। ओके सर। ठीक है। Azan bhai, you can share your screen. I'm giving you access. yes I've got it. So ये हमारा वेबसाइट है। आप ये वाला जो पूरा प्रोसेस है इसको बहुत ध्यान से देखिए, उसके बाद भी अगर कुछ क्वेरीज होंगे तो इंशाल्लाह हम उसको एंड में देखेंगे, बट पहले आप ये पूरा प्रोसेस समझ लीजिए एक बार इसको किस तरह से करना है। तो जब आप लिंक पे क्लिक करते हैं तो आपको इस तरह का वेबसाइट आता है और वहां पे ये रजिस्टर नाउ का बटन आता है। जो बच्चे ऑलरेडी रजिस्टर कर चुके हैं उनको यहाँ पे साइन इन का जो ऑप्शन है वहां पे जाके साइन इन करना है और उनके लॉगिन आईडी और पासवर्ड जो उनके पास है वो यूज करके साइन इन करना है।
तो हम लोग स्टार्ट से जाते हैं। पहले जब आप लॉगिन, आप लिंक पे क्लिक करेंगे, आपको रजिस्टर का बटन आएगा, आप यहाँ पे रजिस्टर करने के लिए जाएंगे। तो आपको यहाँ पे, क्योंकि आप एज अ स्टूडेंट रजिस्टर कर रहे हैं, आपको ऑर्गेनाइजेशन पे क्लिक नहीं करना है, आपको उस तरफ देखने की कोई जरूरत नहीं। आप स्टूडेंट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको आपका पूरा नाम पूछेगा, तो हम अभी फिलहाल के लिए एक टेस्ट डाल देते हैं, ईमेल आईडी डाल देते हैं। चूंकि ये रजिस्टर किया हुआ है हमने ऑलरेडी से पहले से, तो यहाँ पे तो आप लोगों को एक चीज ये ध्यान देने की, कभी कभी हो सकता है क्योंकि टेक्निकल बहुत सारी टेक्निकलिटीज इसमें इन्वॉल्व रहती है, तो आपका जो लॉगिन आईडी है या आपका जो पासवर्ड जो ओटीपी के थ्रू आता है वो कभी कभी लेट भी आ सकता है। तो अगर वो लेट आएगा तो आप उसके लिए घबराएं नहीं, थोड़ा टाइम दें उसको, और थोड़ी देर बाद जब आपको वो ओटीपी मिल जाए उसके बाद आप ट्राई करें। उसके बाद अगर आपको कुछ इश्यू आता है तो आप जो हमारा नंबर दिया हुआ है इसके ऊपर कॉन्टैक्ट टेस्ट में जाएंगे, तो एक नंबर है, वो नंबर पे कॉन्टैक्ट करें और जो भी इश्यू है उसको वहां से रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि देखिए कभी कभी क्या होता है, बहुत सारे बच्चे एक साथ कर रहे हैं या सर्वर का कुछ इश्यू होता है, तो वहां पे इस तरह के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो आप ऐसे कभी भी कुछ इश्यू होता है तो थोड़ी देर बाद ट्राई करें, या फिर हमारा जो नंबर है उस पर आप कॉन्टैक्ट करें, इंशाल्लाह जो भी क्वेरीज होगी वो रिजॉल्व कर दी जाएगी। तो बेसिकली जब आप ये कर लेते हैं, इसके बाद आपको अगर सर हमारा कोई ईमेल नहीं है, ईमेल आईडी नहीं है, एक ईमेल आईडी आप जीमेल पे जाके क्रिएट कर लीजिए, बहुत आसानी से बन जाता है, क्योंकि ईमेल आईडी बहुत जरूरी है क्योंकि हमारे जो भी इसके बाद जो भी डिटेल्स आपको दी जाएंगी या फॉरवर्ड की जाएंगी वो ईमेल के थ्रू ही की जाएंगी। तो ईमेल आईडी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपके पास नहीं है, आपके किसी पेरेंट्स या रिलेटिव्स में किसी के पास है, तो उनका डाल दीजिए। लेकिन आपको वहां पे ध्यान रखना है कि जो भी इंफॉर्मेशन आएगी वो वहीं आएगी। या तो आप आपका खुद का एक ईमेल आईडी बना लें और उसको वहां पे डालो, और सारे इंफॉर्मेशन जो है वो उसी पे दी जाएगी। ठीक है। तो खैर जब आप ये रजिस्टर कर लेते हैं तो आपको यहाँ पे रजिस्टर करने के बाद जब आपको ओटीपी आता है, वो ओटीपी डाल के आपको वेरीफाई करना है। वो वेरिफिकेशन होने के बाद आपको वो, जब आप नेक्स्ट टाइम आते हैं तो आपको साइन इन करना होता है। साइन इन करने के लिए आपका ये वाला पेज ओपन होता है। यहाँ पे आप जो आपने ईमेल आईडी और पासवर्ड डाला हुआ है, सेट किया हुआ है, वो डालने के बाद यहाँ पे सबमिट करना है। जब आप सबमिट करेंगे तो इस तरह का विंडो ओपन होता है। आप यहाँ पे क्लिक हियर करके आपकी जो भी डिटेल्स है वो यहाँ पे फिल कर सकते हैं। और ध्यान रखिए कि जितने भी कंपलसरी डिटेल्स है वो आपको डालने ही पड़ेंगे, उसके बिना आपका ये फॉर्म सबमिट नहीं होगा। और ये फॉर्म अगर सबमिट नहीं होगा तो आपका रजिस्ट्रेशन इनकम्प्लीट होगा। सर ऑर्गेनाइजेशन कोड डालना भी इम्पोर्टेंट है क्या? बेटा ऑर्गेनाइजेशन कोड जब आप एज अ स्टूडेंट रजिस्टर करते हैं, ये वाला जो कॉलम है ना, वो कॉलम कंपलसरी नहीं है, वहां पे स्टार का मार्क नहीं है। ठीक है, तो वो आपको ब्लैंक छोड़ देना है। वो ऑर्गेनाइजेशन कोड सिर्फ इसलिए है जहाँ पे कोई बल्क में रजिस्टर, कोई ऑर्गेनाइजेशन अपने बच्चों को रजिस्टर करता है सर उनके लिए, टेंटेटिव आपके फाइनल लिए एग्जाम नहीं है। मंथ में क्या डालना है? आपको हम एक एक करके सारी इंफॉर्मेशन बताते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका नाम डाल देना है, पूरा जो भी नाम होता है। ठीक है, फिर आप यहाँ पे ईमेल आईडी डाल दीजिए, जो आपने वहां पे रजिस्ट्रेशन के टाइम डाला था वही वाला ईमेल आईडी यहाँ पे डालेंगे आप। ठीक है, मोबाइल नंबर आपका डालना है यहाँ पे। यहाँ पे आप करेंटली जो ग्रेड में हैं, सपोज अगर आप आज के डेट में अगर ग्रेड 9 में है या ग्रेड 8 में है या ग्रेड 10 में है, वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये गलत सिलेक्ट कर लिया तो आपको पेपर जो आएगा वो गलत आएगा, और फिर आपके जो मार्क्स होंगे वो ठीक से इवेल्युएट नहीं हो पाएंगे। सपोज आप अगर 9th में हैं और आपने 10th भर दिया या आपने 8th भर दिया, तो जब आप एग्जाम देंगे, आप 8th का एग्जाम देंगे, और अगर उसमें आप क्वालिफाई होते हैं और बाद में आपको 10th का क्या बोलते हैं फाउंडेशन क्लास में रजिस्टर करना है, वो नहीं हो पाएगा, आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो आप ये बहुत ध्यान से भरें कि आप कौन से ग्रेड में आज के डेट में है और उसी हिसाब से भरें। कोई स्टेट ऐसा है जहां पे 21-22 अकेडमिक ईयर के एग्जाम्स ऑलरेडी फाइनल एग्जाम्स हो गए हैं, वो इंडिविजुअली हम जब Q&A करेंगे आप उस वक्त सवाल पूछ लीजिएगा, हम आपको उसका जवाब वहां पे दे देंगे।
ठीक है, सो ये 9th ले लिया। जो स्कूल का नाम है वो आप यहाँ पे स्कूल का नाम भर दीजिए। गवर्नमेंट स्कूल है तो गवर्नमेंट, प्राइवेट है तो प्राइवेट, ये डाल दीजिए। कौन से बोर्ड से हैं तो ये यहाँ पे आपको ड्रॉप डाउन में सारे बोर्ड दिए हुए हैं, इसमें से कोई एक बोर्ड जो होगा वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। मीडियम ऑफ एजुकेशन जो है वो इंस्ट्रक्शन, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है बेसिकली। जैसे आप अगर उर्दू मीडियम में हैं, हिंदी मीडियम में हैं, इंग्लिश मीडियम में हैं, उसके हिसाब से आपको यहाँ पे भरना है। आप एक चीज बहुत ध्यान से समझ लीजिए कि ये जो एग्जाम्स होंगे ये सारे इंग्लिश मीडियम में ही होंगे, तो आपके जो भी पेपर्स आएंगे वो सारे इंग्लिश में आएंगे, तो वो आपको ध्यान रखना है। अगर आप यहाँ पे हिंदी भी भरते हैं फिर भी आपको क्वेश्चंस जो आंसर करने पड़ेंगे वो इंग्लिश में ही करने पड़ेंगे, बिकॉज हमारा प्रोसेस जो है उसमें हम लोग सिर्फ इंग्लिश इंस्ट्रक्शन मीडियम जो है वो हम लोग प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे जो आप करेंटली स्कूल में हैं वो डे स्कॉलर स्कूल है या रेसिडेंशियल स्कूल है वो डाल सकते हैं। टेंटेटिव फाइनल एग्जाम डे स्कॉलर एंड रेसिडेंशियल मतलब क्या? मतलब ऐसे है कि जब आप बोर्डिंग स्कूल्स जो होते हैं उसको रेजिडेंशियल स्कूल्स भी बोलते हैं, तो अगर आप बोर्डिंग स्कूल में पढ़ते हैं तो आप बोर्डिंग स्कूल लिखे, या डे स्कूल ये वो होता है जहाँ पे आप सुबह स्कूल जाते हैं या दोपहर में स्कूल जाते हैं और रात में शायद शाम को आप घर पे वापस आ जाते हैं, उसको डे स्कूल बोलते हैं। ठीक है। टेंटेटिव फाइनल एग्जाम मंथ मतलब आपका फाइनल एग्जाम कौन से महीने में होता है। जैसे अभी बॉम्बे में जो स्कूल्स हैं, जो स्टेट बोर्ड के स्कूल्स हैं, वहां पे मार्च और अप्रैल के बीच में या अप्रैल में जनरली एग्जाम्स होते हैं फाइनल के। जो सीबीएसई बोर्ड के स्कूल्स हैं उनके मार्च में फाइनल एग्जाम्स हो जाते हैं, तो उसी हिसाब से आपके जब फाइनल एग्जाम होने वाले हैं आपके करंट ग्रेड के, वो आपको वहां पे लिखना है। ऑर्गेनाइजेशन कोड आपको ब्लैंक छोड़ देना है। यहाँ पे आपका एड्रेस आएगा पूरा, सिटी विलेज, जैसे हम मुंबई में है तो हम मुंबई लिख देंगे। स्टेट जो है वो महाराष्ट्र है। डिस्ट्रिक्ट जो हमारा लगता है यहाँ पे मुंबई है तो मुंबई सिटी लगेगा। पिन कोड जो है वो 400। ठीक है। यहाँ पे आपका पूरा एड्रेस देना है डिटेल में। आपका यहाँ पे क्लिक करके आपको आपका एक कोई भी फोटो जो है वो रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटो वो डालना है। ध्यान रखिए कि आप जब फोटो डाल रहे हैं वो एक प्रॉपर फोटो, आपने कोई सेल्फी ली हुई हो या उस तरह का फोटो ना ऐड करें तो बेहतर होगा। आप एक प्रॉपर जो प्रोफेशनल फोटोज होते हैं आप वही डालिए। यहाँ पे गर्ल्स जो होंगी वो ध्यान रखें कि वो आपके जो फोटोज डालेंगे वो प्रॉपर हिजाब में होने चाहिए। अपलोड मार्कशीट जो है यहाँ पे आपका, सपोज अगर आप 8th में हैं अभी तो आपको 7th का जो लास्ट एग्जाम हुआ है फाइनल एग्जाम, उसकी मार्कशीट यहाँ पे करनी है। अगर आप 9th में हैं मिली नहीं, आपको जो लास्ट, हमारे तो अभी फाइनल एग्जाम ही नहीं हुआ है। नहीं सर, मतलब लास्ट ईयर की सर मार्कशीट लास्ट ईयर की जो मार्कशीट होगी वो आप लगाइएगा। अगर वो भी नहीं मिली है तो आप वहां पे उसके जो प्रीवियस एग्जाम हुआ होगा या लास्ट ईयर में कोई सेमेस्टर एग्जाम हुआ होगा उसकी लगा दीजिएगा, और जो हमारा नंबर है वहां पे आप मैसेज करके बता दीजिए कि ये फला फला बच्चे का जो ये वाला मार्कशीट हमने लगाया हुआ है। ठीक है। आर यू सब्सक्राइब टू एनी ऑनलाइन पोर्टल ऐप फॉर एजुकेशन। तो यहाँ पे अगर आप जैसे बाईजूस है या इस तरह की कोई ऐप पे आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो करिए। अगर आपके स्कूल का कोई ऐप है जो आप यूज करते हैं तो यहाँ पे आप नो पे क्लिक करिए। आर यू अटेंडिंग एनी ऑफलाइन कोचिंग क्लासेस। आप 8th 9th और 10th के लिए कोई आपके एरिया में या आपके घर के आसपास में या किसी इंस्टीट्यूट में अगर आपने कोचिंग क्लास ली हुई है तो आप वहां पे यस करेंगे और उसका नाम डालेंगे नीचे। ठीक है। उसके बाद ये लास्ट है कि आपको इस प्रोग्राम के बारे में कहाँ से मालूम पड़ा है, उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि हमको भी हमारा जो मीडिया है उसको बताना होता है कि वो कहाँ पे हमारे बच्चे ज्यादा मिलते हैं, तो हम वहाँ पे ये सारे मैसेजेस डालें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये मैसेज पहुंच सके। और वो करने के बाद आप सबमिट कर दीजिए। सबमिट करेंगे, आपके सारे इंफॉर्मेशन अगर आपने भरे होंगे तो ये सबमिट हो जाएगा। अगर ये सबमिट नहीं हो रहा है तो कोई ना कोई जो कंपलसरी इंफॉर्मेशन है वो होगी, वो मिसिंग होगी, उसके वजह से सबमिट नहीं हो रहा है। उसके बावजूद भी अगर आपका सबमिट नहीं होता है, कुछ टेक्निकल एरर आता है, तो आपको हमारे मैक्सस्टार के जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर इन्फॉर्म करना है। फिर हमारा जो बैकएंड टीम है वो इंशाल्लाह देख के उसको किस तरह से रिजॉल्व करना है वो कर देगा। अब एक बार जब आपने ये फॉर्म भर लिया और वो भरने के बाद अगर आपको लगता है कि उसमें आपकी कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो गलती से मिस्टेक से कुछ आपने डाल दिया और उसको करेक्शन करना है, तो उसका ऑप्शन भी है यहाँ पे, जो आप
तो यहाँ पे ये जो स्टूडेंट डिटेल्स दिख रहा है आपको, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे ये सारे जो डिटेल्स आपने भरे हैं ये व्यू डिटेल्स में जाके आप चेक कर सकते हैं। इसके अंदर अगर आपको लगता है कि आपका कोई इंफॉर्मेशन जो आपने गलत भरा था उसको आपको एडिट करना है, तो आप इस पे जाके एडिट करके वो इंफॉर्मेशन को अपडेट कर सकते हैं। अगर आपके सारे इंफॉर्मेशन करेक्ट भरा है, आपने सब कुछ करेक्ट भरा है, तो आपको उसके आगे कुछ नहीं करना है। उसके आगे आपको जाके आपके एग्जाम्स के लिए तैयारी करनी है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जरूरी है। आपने रजिस्टर करने के बाद आपको यहाँ पे कोई काम नहीं है, आप यहाँ से सिर्फ डिटेल्स ले लीजिए कि आपको किस किस चीज की पढ़ाई करनी है और उसके लिए आप तैयारी करना शुरू कर दी। इंशाल्लाह जिस दिन एग्जाम होगा उस दिन आपके मार्क्स अच्छे हैं। बेटा रुक जाइए, आप 2 मिनट और रुक जाइए, कुछ ये लास्ट स्टेप है, इसके बाद हम क्लोज करेंगे और फिर हम लोग क्वेश्चंस लेंगे, तो उस वक्त एक एक करके आप लोग आपके क्वेश्चंस। ओके सर। तो यहाँ पे ये सारी डिटेल्स आपको ऐड कर दी है अगर आपने, और आपकी डिटेल्स करेक्ट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। सपोज आप 2 भाई बहन हैं या आपका कोई कजिन है या आप किसी और बच्चे का रजिस्ट्रेशन आपके रजिस्ट्रेशन के अंदर ही करना चाहते हैं, तो आप ऐड स्टूडेंट करके सेकेंड स्टूडेंट का डिटेल्स भी सिमिलर तरीके से भर सकते हैं। यहाँ पे कोशिश ये करिए कि अगर आपके सिबलिंग्स हैं या जैसे आपके सगे भाई बहन हैं तो उनकी ही डिटेल्स यहाँ पे भरिए, और आपके जो कजिन्स हैं उनका एक सेपरेट रजिस्ट्रेशन करके उनके अकाउंट में डालिए, ताकि क्या है कि जो प्रोसेस है वो सब जब आपको बच्चों के बारे में मतलब जब एग्जाम की या और किसी तरह की इंफॉर्मेशन दी जाएगी तो जो आपने ईमेल आईडी दिया है उसी पे दी जाएगी। अगर आप मल्टीपल स्टूडेंट्स जो आपके एरिया के या किसी के होंगे और आप उनकी भी डिटेल भर देंगे तो वहां पे थोड़ा सा मिक्सअप हो सकता है। तो आप कोशिश करिए कि आप सिर्फ सिबलिंग्स की डिटेल ही यहाँ से भरिए ऐड स्टूडेंट करके, और अगर आपके कोई कजिन्स वगैरह हैं तो उनको बोलिए कि वो उनके नंबर और ईमेल आईडी से रजिस्टर करके वहां पे भरें। ठीक है, तो ये लास्ट स्टेप है। एक बार आपने ये कर लिया, आपका काम यहाँ पे खत्म हो जाता है। उसके बाद जो भी इंफॉर्मेशन होगी आपका ईमेल जो है वो कंटिन्यूअसली चेक करते रहें, जो भी इसके आगे का इंफॉर्मेशन होगी वो आपको ईमेल के थ्रू भेज दी जाएगी। तो आप वहां पे ध्यान रखें और आपका जो एग्जाम डेट्स है उसके हिसाब से आपकी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाएं। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस है हमारा रजिस्ट्रेशन का। इसमें कहीं भी कुछ भी डाउट है तो आप लोग एक एक करके हैंड रेस करके क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। एक बार इसके क्वेश्चंस खत्म हो जाएंगे फिर हम लोग जो नॉर्मल Q&A है वो भी लेंगे, और अगर कोई क्वेश्चंस एक बच्चा पूछ लेता है और उसके हिसाब से दूसरों के आंसर्स मिल जाते हैं तो आप कोशिश ये करिए कि क्वेश्चंस रिपीट नहीं करें, क्योंकि हमारे पास टाइम ऑलरेडी 1 घंटे हो गए हैं, तो हम लोग इसको बहुत लंबा नहीं करें। ठीक है, चलिए आपके क्वेश्चंस कुछ हाँ एग्जाम से रिलेटेड मतलब ये रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड है तो आप पूछ सकते हैं। सर हमें कहाँ सिलेबस मिलेगा सर? Students, please raise your hands and we will call out your name and you can ask a question. Okay, हम लोग कहीं नहीं जा रहे। जिसको सब क्लैरिफाई हो गया है वो आप लोग चले जा सकते हैं, हम लोग कहीं नहीं जा रहे हैं, हम लोग आपके पूरे सवाल ही क्लियर करके जाएंगे आज। ठीक है, तो सैयदा सानिया फ्रॉम कश्मीर, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। मैम मैं कश्मीर से बोल रही हूँ। I have currently done my 10th exams and I have to join 11th medical. So I was confused कि 11th के लिए भी है। अभी मैंने currently 10th का एग्जाम दिया हुआ है। हमें कश्मीर में अक्टूबर और नवंबर तक सेशंस होते हैं फाइनल एग्जाम्स के, तो वो मैंने दे दिया है। अब मुझे चढ़ना है 11th में, तो उसके लिए मैंने ये फॉर्म सबमिट करा था जहां पर मैंने उसका स्टैंडर्ड करंटली 10th लिखा है। So have I done any wrong thing in there? नो बेटा, यू हैव डन करेक्टली, बिकॉज कश्मीर इसलिए हमने बोला कि कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जिनके जो सेशन का टाइमिंग्स है वो डिफरेंट है। तो आपने जो एग्जाम का जो मंथ है वो मंथ आप करेक्टली वहां पे डालिए। आपके शायद अक्टूबर नवंबर में एग्जाम्स हो जाते हैं, करेक्ट? जी सर, जी सर। हाँ, तो वो जो आपका एग्जाम मंथ है वो आप करेक्टली डालिए, और आप एलिजिबल होंगे रेजिडेंशियल प्रोग्राम के लिए। तो जब आप एग्जाम देंगे तो आपको 10th का एग्जाम देना है। तो सर मुझे इसी हिसाब से आपका क्वेश्चन आएगा कि मैंने 10th का एग्जाम दिया है और मैं 11th के लिए अप्लाई कर रही हूँ, उसी हिसाब से आएगा। जी जी जी। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। ओवैस मलिक। हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं इस पे पहली बार इस लिंक पे आया था, और मुझे कहाँ से सिलेबस मिलेगा? सिलेबस आप यहाँ पे जाएंगे, इंक्वायरी करके ये जो टैब दिख रहा है आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है? यस सर।
हाँ, यहाँ पे ये इंक्वायरी करके टैब है, आप इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये देख रहे हैं ये आपको कौन से क्लास का सिलेबस चाहिए, उस पे आप क्लिक करेंगे और वो क्लास का, आप कौन से ग्रेड में है बेटा 8 अभी? सर 8 हाँ 8 में है, आप 8 में जाइए, यहाँ पे आपको 8 का सिलेबस मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू सर। थैंक यू जी। नेक्स्ट क्वेश्चन। Next we have Mehdi Hussain. Mehdi Hussain. Yes, I have doubt from registration form. Excuse Please me, tell me. providing material for the exam. Please एग्जाम raise your के लिए hand. आपको सिलेबस दिया है बेटा, वो सिलेबस के बेसिस पे आपका जो करंट ग्रेड, जिस ग्रेड में है आप, वो सिलेबस के हिसाब से आपको पढ़ना है। एग्जाम मटेरियल हम लोग सेपरेटली कुछ प्रोवाइड नहीं करते, इट इज बेस्ड Okay. ऑन जो Sir, will the exam be multiple choice like last time? यस इट विल बी मल्टीपल चॉइस। Please आप लोग अपने hand raise करें और confusion ना create करें please. Mehdi Hussain, you can ask your question. Yes, sir. Will you please open that registration form? I have not in this. Yeah, tell me. I will open it. Tell me what is your doubt. Please tell me beta. Tell me your doubt. Mehdi, you're on mute. You have to unmute yourself. Yes, sir. Your voice is not clear. Please repeat. Yeah, I have opened the form. Tell me. I have opened the website. Where is the problem? I mean, what is your doubt? If you can just tell. Sir, in filling details about the student. What is the doubt? Tell me no. Sir, I have already enrolled in the Makestar scholarship program in the last year of class 9. Now I have class 9. So what should I have to write in the online app or online website portal? Beta, as I said, that is only for students if you are taking if you have taken any subscription of apps like Byju's or White Hat Junior or something like that, then only you have to put. Otherwise, you have to say no. That's all you have to do. Okay, sir. Thank you. Okay. Okay. Sukaina Zaidi. Yes, ma'am. Excuse me, sir. Actually, I wanted to ask that, जो जैसे मेरी कजन है तो उन्हें वो 11th क्लास में है, तो आप रेजिडेंशियल प्रोग्राम बता रहे थे, तो मतलब वहाँ पे कैसे कितनी देर तक रुकना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि स्कूल्स ओपन हो जाएं और स्कूल्स भी चलें, तो उसमें बेटा क्या एक तो होगा? पहली बात है कि अगर वो ग्रेड 11th में है तो वो इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल नहीं है। ये प्रोग्राम जो बच्चे अभी ग्रेड 10th में हैं उनके लिए ही है, और 10th होने के बाद जो 2 साल का रेसिडेंशियल प्रोग्राम है उसके लिए आपको 2 साल जाके हैदराबाद में वो फैसिलिटी में ही रहना होगा। उसमें जब छुट्टियां होंगी तभी आपको घर आने मिलेगा, बाकी पूरा टाइम यस सर, वो 10th में ऑलरेडी हैं और उन्होंने मैक्सस्टार का एग्जाम भी दे रखा है। एग्जाम दे रखा है? अभी तो एग्जाम नहीं हुआ ना बेटा, लास्ट ईयर दिया था। नो सर, लास्ट ईयर दिया था। यस। हाँ तो लास्ट ईयर एग्जाम दिया था तो उनको इस साल फिर से रजिस्टर करना होगा और फिर से उनको एग्जाम देना होगा। तो सर कौन सी क्लास के लिए रजिस्टर करना? हाँ बेटा, अभी वो एलिजिबल नहीं है क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी 10th क्लियर करके 11th में पहुंच गए हैं ना, तो 11th के बच्चों के लिए ये प्रोग्राम चल रहा है उनका। अभी 10th चल रहा है उनका, तो आप वो 10th के लिए करेंगे रजिस्टर। जब वो फॉर्म भरेंगे वहां पे उनका जो करंट ईयर है उसको 10th लिखेंगे और 10th के एग्जाम लास्ट ईयर तो ये बताया था कि 11th के लिए भी अभी होगा। रेजिडेंशियल प्रोग्राम किसके लिए? क्योंकि उन्होंने जब लास्ट ईयर 10th के लिए किया तो उनको तो नहीं बुलाया। बेटा वो 10th में थे लास्ट ईयर, 9th में थे तो उनको 9th के जो फाउंडेशन कोर्स है उसके लिए दिया होगा। अगर वो क्वालिफाई हुए होंगे तो, अगर वो क्वालिफाई नहीं हुए होंगे तो उनको इस साल फिर से एग्जाम देना होगा 10th के लिए, और वो रेसिडेंशियल प्रोग्राम के लिए उनको ट्राई करना होगा। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। Sughra Fatima from Lucknow. यस सर। सर मेरा क्वेश्चन ये था
कि जो सर हम लोग फॉर्म फिल करेंगे उसमें आ रहे रिजल्ट डालिए लास्ट ईयर का। मेरा क्लास 8 का भी रिजल्ट नहीं है, 7 का भी नहीं, क्योंकि ऑनलाइन वो हुआ था। सो तो ऑनलाइन आपको कुछ रिजल्ट स्कूल ने प्रोवाइड नहीं किया है? नहीं, हम लोग के स्कूल ओपन नहीं हुए, ऑनलाइन क्लासेस नहीं ही तो चल रहे थे। बट रिजल्ट्स तो डिक्लेयर किए होंगे ना बेटा? नहीं किए। तो आपके पास 6th का रिजल्ट है? हाँ 6th का है सर, 5th अब का 6th अभी फिलहाल के लिए आप 6th लगा दीजिए, और फिर जब आप क्वालिफाई होंगे तो उसके बाद अगर रिजल्ट्स की जरूरत होगी तो इंशाल्लाह आपको बताया जाएगा, बट अभी आप 6th का लगा दीजिए क्योंकि आपके हाँ पास सर, अगर सर रिसेंट स्कूल से सर रिजल्ट नहीं है। मांगेंगे लाइक जाके तो सर वो दे देंगे, बट सर हाँ उसके तो लिए आप काफी मांग टाइम। लीजिए, बट आप सर मांग स्कूल्स लीजिए। हमारे क्लोज हैं, और सर 16 के बाद खुलेंगे लखनऊ में स्कूल। और सर जी, तो जब अभी आप क्या करिए, अभी आपके पास जो 6th का रिजल्ट है आप वो लगा दीजिए, और जब आपके 9th के रिजल्ट या 8th ग्रेड में है ना अभी आप, जब आपके वो रिजल्ट आप मांग लीजिए, मिल जाएंगे तो आप हमको सेपरेटली ईमेल आईडीज जो है दिए हैं उस पे भेज ओके दीजिएगा, या सर। आप व्हाट्सएप और पे सर हमको भेज लाइक सर अभी हम लोग 9th में एज लखनऊ में भी हैं, तो मार्च और अप्रैल तक के हम लोग 10th में चले जाएंगे। सो जब मार्च जी फेब में हम लोग के एग्जाम्स होंगे तब तक के तो मैं 10th जी। में होंगी, जब रिजल्ट्स निकलेंगे तब भी 10th में होंगी, तो क्या मुझे रेसिडेंशियल प्रोग्राम मिलेगा? रेसिडेंशियल प्रोग्राम बेटा 11th और 12th के लिए है, तो आप अगर अभी 9th में है तो आपको फाउंडेशन प्रोग्राम के लिए आप रजिस्टर करिए 9th में, और जब आप नेक्स्ट ईयर 10th में होंगे ना तो आपके जो 10th के सिलेबस है उसके बेस पे आपको फाउंडेशन कोर्स में पढ़ाया जाएगा, ठीक है? फिर आप नेक्स्ट ईयर, हाँ फाउंडेशन प्रोग्राम ऐसा है कि फाउंडेशन प्रोग्राम में आपको इंग्लिश, मैथ्स और साइंस जो है वो आपकी स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको प्रोग्राम रन किया जाता है, उसमें अगर आप क्वालिफाई होंगे तो उसके लिए ऑनलाइन क्लासेस आपको मिलेंगे। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू। Faizan bhai, just to clarify for the students in general, can you please tell them what happens in the foundation program? मतलब वो लोग तो अब 11th and 12th की पढ़ाई पढ़ेंगे, तो क्या वो लोग की 11th and 12th की पढ़ाई रह जाएगी? नहीं, फाउंडेशन प्रोग्राम में 11th 12th नहीं आता है ना सिस्टर। सॉरी, रेसिडेंशियल प्रोग्राम में, रेसिडेंशियल प्रोग्राम। जी जी। सो मैं आपको जैसे बता रहा हूँ, देखिए 8th और 9th में जो बच्चे अभी हैं उनको 9th और 10th के जो सिलेबस होगा उसके बेस पे उनको ऑनलाइन क्लासेस दी जाएंगी, जिसमें उनको मैथ्स, इंग्लिश और साइंस के ऊपर हेल्प की जाएगी ताकि उसको आप स्ट्रॉन्ग कर सके। जो बच्चे अभी 10th में हैं उनको नेक्स्ट ईयर वो 11th में होंगे तो उनको 11th और 12th 2 साल के लिए रेसिडेंशियल प्रोग्राम ऑफर किया जाएगा, जो कि हैदराबाद में होगा फोकस एकेडमी के अंडर में, और वो वहां पे 2 साल रह के आप उनको वहां पे पढ़ाई करनी पड़ेगी, जो कि वो 11th और 12th क्लियर करेंगे, और उसके साथ साथ में नीट या JEE जिसके लिए भी वो इंटरेस्टेड है उसकी तैयारी करेंगे, और जब उनके एग्जाम्स होते हैं नीट और JEE के, वो एग्जाम्स देके फिर वो वहां से रिटर्न आएंगे। मतलब स्कूल की पढ़ाई भी पढ़ाई जाएगी रेसिडेंशियल प्रोग्राम? हाँ, बेसिकली जो 2 साल का रेसिडेंशियल प्रोग्राम होता है ना वो एक तरह का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है, जहाँ पे जो उनको 11th और 12th का जो सिलेबस होता है वो जो नीट और JEE की पढ़ाई है उसके साथ में मर्ज किया हुआ है इस तरह से, ताकि जब वो पढ़ते हैं तो उनका ये वाला जो पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज ये है जो हम लोग बच्चों को सामने से ऑफर करते हैं वहां पे, कि आपको अगर आपके स्टेट, बिकॉज वहां पे कुछ एक इशू है जो डोमिसाइल को लेके होता है बहुत सारे स्टेट्स में, कि आप जिस स्टेट के हैं अगर आप उसी स्टेट में 11th और 12th पढ़ते हैं तो वहां का जो एक कोटा होता है वो भी आपको एप्लीकेबल होता है नीट और JEE के लिए। तो अगर आपको वो कोटा भी लेना है तो आप कोशिश ये करिए कि आपके ही किसी आपके स्टेट में ही किसी कॉलेज में आप एडमिशन ले लिए जहाँ पे वो सिर्फ एडमिशन और एग्जाम्स लेते हैं। तो आपको पढ़ाई हैदराबाद में करनी है, जब आपको वो एग्जाम का टाइम होगा तो आप आपके स्टेट में जाके वो एग्जाम्स देके रिटर्न हैदराबाद आ सकते हो। तो उससे क्या होगा कि आपका जो वो डोमिसाइल वाला इशू है वो सॉल्व हो जाए। अगर बच्चों को वो नहीं चाहिए तो हम हैदराबाद के किसी एक स्कूल में उनको कॉलेज में उनका 11th 12th का एडमिशन भी करवा देते हैं, वो बच्चे के कंसेंट के ऊपर होता है, बच्चे और पेरेंट के। और वहां पे क्या होता है कि फिर वो पढ़ाई तो फोकस में ही करते हैं। बेटा एक मिनट, पढ़ाई तो वो फोकस में ही करेंगे, लेकिन जो उनके एग्जाम्स होंगे, बिकॉज स्टेट के जो एग्जाम्स होते हैं ना वो स्टेट बोर्ड के स्कूल्स में ही देने होते हैं या कॉलेजेस में ही देने होते हैं, तो उसके लिए कोई बाईपास नहीं है अभी तक अनफॉर्चुनेटली। तो वो उनको वो एग्जाम्स जो है वो बोर्ड
के उनके जो या तो वो अगर अपने स्टेट के स्कूल में कॉलेज में रजिस्टर करते हैं तो उनको वहां पे देने के लिए हम हैदराबाद से उनको छुट्टियां दे देते हैं, वो जाके एग्जाम दे के वापस आ जाते हैं। या अगर वो उन्होंने हैदराबाद में ही एडमिशन लिया तो वो जो पर्टिकुलर स्कूल है या कॉलेज है वहां पे जाके वो एग्जाम्स दे देते हैं। तो वो दोनों एग्जाम उनको देने पड़ते हैं 11th और 12th के अलग से, और जो पढ़ाई होती है वो फोकस एकेडमी में ही। थैंक यू सैयद तो ये जो इम्तियाज जहरा, न्यू एक टर्म है ये इंटीग्रेटेड बोलते हैं इसको, जहाँ पे वो 11th 12th नीट और या JEE के लिए साथ में प्रिपेयर करते हैं। राइट, थैंक यू सैयद इम्तियाज जहरा। Assalamu alaikum, sir. I am from India, Mumbai. Sir, I was having a doubt all over about the registration. I did 2 days. I continuously I was doing the registration. I'm not having the cousin sis. She's my sister. I am login into. I am doing the login of hers also. So it's like what happening? It's not happening. So I was asking that, can I send all the information about my sister on the WhatsApp number that you have shown me? So I have noted down. Beta, what you can do is you can just connect with that on that number. She will help you get the registration done. If there is still any problem, our backend team will take your information and put it up. So first you connect with her. She will try and resolve the issue. If the issue is still not resolved, then we will work out something. So first you connect with her and tell her that there is a problem with your registration, and she'll try and get it resolved. अगर नहीं होगा तो फिर हम इसको second step पे जाते हैं. And if I have made my account. जी. सर हम लीव कर सकते हैं सर? बेटा उनका एक क्वेश्चन खत्म हो जाने दो, 1 मिनट आप होल्ड करिए. Sayyid Imtiaz Zahra, you can please ask a question. I think her internet got something. No problem. So the thing is, if there is any issue anywhere with respect to registration, you can connect with this number. It is 9167705048. Just WhatsApp the details to sister. She will respond. If you don't get a response, then call up. She will be available between 11 a.m. and 8 p.m. So do not try to call or send anything beyond that. That is the time she is available. She'll help you out with whatever queries you have with respect to your registrations. Kisan, I have some questions. एक second. Muhammad Haidari, we are coming to you. Kisan Naqvi. Assalamu alaikum. Walaikum assalam. Can I know what is organization code in that form? Beta, organization code is not for individual registration. You can keep it blank. Sir, I have done my registration, but whenever I check my profile, it says that my school name is also April, and I had corrected it too many times, but it didn't work. Just put your issue on the contact number. She will try and get it resolved. This is the number. You can connect with her and we'll get it resolved. Thank you. Muhammad Haidari. Muhammadi Haidari. Sorry. Yes, ma'am. My name is Muhammadi Haidari. I am from class 10th and I am from Nagpur, Maharashtra. Yeah, ma'am, I have please tell 3 me. questions. Just a minute. Excuse me, I just wanted to ask that what is a residential program in which we will need scholarship or something will be there, money problems and anything? Yeah. So, beta, which grade are you in currently? I'm in 10th currently and I will approach for 10th board in month of March. All right. So, the residential program is for 2 years. That will be for students who are currently in grade 10. The scholarship will be provided to the top 30 students who will score. So the process is step based. Yes, the first stage is you have to clear the MCQ exam online exams. Once that is done, you will be qualified for the personal interviews. Once that is cleared and you are selected, then you will be provided an option
to go to Hyderabad for 2 years program, and the scholarship will be provided by us. Okay. You don't So have there to will pay be for no the need. scholarship. We will request students who can afford to pay for their lodging and boarding, which is food and stay, if they can. If they cannot, we'll work something out for that as well. Okay, All right? and my second question is also there. Yeah, I just wanted to ask that my papers, board papers, will be in March, and we are first stage of this paper. Max start is on 13th Feb, and when will be the second stage The paper? second stage would be, we will keep in mind that students who are appearing for boards, we will try and do it after your boards, because you will give you ample time to prepare for your board, so we'll not disturb you Okay, doing thank that. you very much. All right, Thank so you. we'll keep that in mind. Okay, thank you. And That's a good question actually for us also to plan. Thank you. For that. Thank you very much. It's my pleasure. So last question, third question, so I just wanted to ask that when we will be in 11th and 12th, so we have to give the exams there only, or we have to give here? Because I want to clear NEET. So the option is given to the students. They can register for grade 11th in their own state. Suppose if you are in Maharashtra, you can register in Maharashtra itself in a college which can only give you which can allow you to give only the exams. You don't have to study anything over there. You register over there. You go to Hyderabad, study for the year, come at the end of the year, give your exams, and go back to Hyderabad. So that is one option. The second option is we can get you registered in one of our schools in Hyderabad itself, but then you will lose the domicile quota which you get from Maharashtra. And sir, but there is one thing in Maharashtra, there is 3 options to take 3 subjects. It is physics, maths, biology, and fishery science, and the third is chemistry. These 5 subjects are there. We have to take any 4. So there will also be an option. So all those nitty-gritties we'll get to once you get qualified. So all those options will be offered to you, and we'll do it as per your convenience. Whatever is available. We will not, try and put any student at risk. So we'll see what is your, what is available with us, and whatever is required by you. Generally, PCMB is offered. Suppose if you want to only go for medicine, you can do PCB. If you want to go for NEET, you can do PCM. And if you want to take chance with both, we can work it out. That we'll do it one-on-one. Okay, and so there will be no need of paying money and fees and all. Only for housing. As I said, yes, as I said, we will give you 100% scholarship for the academics. For lodging and boarding, we will first ask you if you can afford to pay. If you can still not do it, we'll work that out as well. Okay, and sir, sorry, but one last question I want to ask. Sorry, literally sorry, but I want to clear because I am interested in this. I'm from Nancy, and my father said that you should do. One last question is that so 2 minutes. It will be from our school boards, like our school syllabus only, or other things. So all the topics on which the exam will be conducted is available in the inquiry tab over here. If you go to the syllabus of grade 10, and you'll get all the information over here. Whatever, see, these are the topics that you have to prepare for. Okay, thank you very much, sir. Thank you. सर आजान हो गई सर, लीव कर सकते हैं? आप लोग को आपको कोई सवाल क्वेश्चंस अगर नहीं है तो आप लीव कर सकते हैं बेटा. थैंक यू सर. थैंक यू. खदीजा रजवी. Yes sir, good evening sir. Good evening बेटा. Sir, I'm currently in 10th class. As you have said that I will be having residential program this year, and I've also registered for this. So sir, are you providing any online session in Lucknow? Because I'm from Lucknow, and I don't want to leave this because of my school and all that. So sir, no sir. So first of all, you have to clear your 10th.
That you can do it in Lucknow itself. For 11th and 12th, it will be a residential program only. We don't provide online setup for that. That Okay, is sir. because, you know, to prepare for 2 years and to get into the institute of your choice, you have to, you know, give that kind of effort and that kind of dedication, and that is difficult, doing it online. So you have to, you know, give your 2 years to yourself and build yourself so that you can clear your NEET and or JEE with good marks. We can't do it something in between. Okay, so you have to put your marks, you have to convince your parents. If you cannot do that, you can ask us. We will try and approach them and see if they can allow you. All right. Yes. Okay, But thank you, sir. online it is not possible, and we don't recommend also. If you're looking at doing it online, and if you can do it offline, please do it offline. Online is not a solution, it's just an option, So, and sir, we don't don't provide that option. sir, don't you have any organization here in Lucknow itself so that I can? Right now, no. Unfortunately, we've just started last year. This is our second year. Dua karo, inshallah. We do, make this program so successful that we can do it in the other states as well. Right now, it is not available in Lucknow. Sorry Okay, for that. Okay, sir. Thank you. Iman Batul Rizvi. Most welcome. Yes, ma'am. Ma'am, actually, I wanted to ask, what do we mean by if you have already registered, then sign in? So that means that you have your email ID and mobile number is registered with us. You can directly go and use your login ID and password to directly log in. So you Ma'am, actually, I don't want this because I am in class 6 now. so you can ignore it, no problem. What did you because you have already what you can do is you can just send your email ID and mobile number on the on this number, that I am currently in grade 6, kindly cancel my registration. We will cancel it. Okay. Yes, ma'am. Thank you. Sayyid Insia Zahra. Sorry to interrupt, sir, again once more time. So I wanted to ask you that if I want to prepare from NEET from 9th standard onwards, as my parents told that if you have to give the exam of for NEET, so you have to prepare it from further standards. So okay. So I wanted to just ask that if the classes will be online, like you just only told that there will be the online classes for students. So the teachers will prepare us for NEET from 9th standard onwards. See, you have to first understand there is nothing called preparation for NEET only. NEET is basically your, they test your level like of concept, understanding. And I was just not for preparation NEET, just concept that so let you me have just to be complete clear that. with it. Yeah. So what we do in foundation is basically we make your understanding of concepts very strong, so that your base is very strong. So when you do 9th, 10th, and then you go for the residential program, you are already into that grind. You've already, kind of gone through various, competitive exams and understood how the competitive exams works. What is the conceptual understanding you should have to, qualify for different Olympiads. So your preparation has to start as early as possible. Your parents are very right. And I'm really glad that they are, putting that in your mind that, you have to start preparing very early. I urge all the parents who are there, to start understanding these concepts of Olympiad exams, competitive exam preparations. Prepare your children for conceptual learning, and you start as early as possible. You can start at grade 8. You don't have to prepare for NEET per se. What you can do is you can prepare your child to be conceptually very clear of what they are learning. Means that basics should be clear from now onwards, huh? Yes. Like so once the basic is strong, your base is very strong.
and you know the process of competitive exams, you will be an early bird into the process, and it will be very helpful. Actually, why I was asking this question, as I have logged into the Byju's app, okay, so I got the scholarship of 70%. So I did that. I did also that, and the teachers, they told me to, means if any the app is means giving you that prepare for the NEET from, means like concept should be clear. So just I was wanted to ask you like the question. Yes. So that is the idea, that your concept should be clear, your base should be strong, so that when you go to the next level, you are already prepared. Yes. Good. Okay, Thank you sir. so Thank much you for so that much. question. Thank you. Mohammadi Yes, Haidari, next question. I hope you have one more list, I think, of questions. Sorry to interrupt you, sir, once again. No problem. But I was having one more question that currently my father is not with me. He will come tomorrow at night. So I think you all are recording this, and I just wanted to ask that if you can put it on WhatsApp, or if you are having any YouTube channel, so you can put it on. Yes, we will be putting it on our YouTube channel. The link will also be available somewhere on the website. We'll also be putting on our through our WhatsApp broadcast. So kindly look for it. If it if it doesn't reach you in any of these mediums, you can just check it out on the WhatsApp number provided over here. Sister will help you get the recording. So don't worry. And the second thing was, sorry, sir. No problem, no problem. We are there for you. Ask as many questions as you want. Don't worry. If my father wanted to talk to you, so can we call a number? You can, but if after listening to this entire video, if he still has some questions, what he can do is just he can send a request on the number provided. Just let's hear me out, beta. You can ask him, or you can ask for a this thing on one-on-one call on this number which is provided. She will connect you with us, and then we can have a call. That's what I'm pretty sure that after seeing this video, he will not be questioning me. But if inshallah, no problem. If he has to ask any questions, he can reach out to us. We will try and connect with him. Okay, so thank you very much. Thank you. Now I can. Sir, Assalamu alaikum. This is Zia Haider, Zainab Haider's father. When this program initiated, so she was in 5th standard and she enrolled by going through all the process for scholarship. But as I got to know today that you have decided not to go further with 6th standard, you are going for 8 to 10 now, right? Right, sir? Yes, sir. Yes, sir. So I would be interested in knowing the reason why you have dropped out the lower standard for this scholarship program. Sir, yeah. So right now, what we have realized, after doing the first year with the other grades as well, is that we will be doing the reverse integration, but step by step. We will not take a lot of students together, and because see, these students which are in grade 5 and 6, they are generally with the age group of 12 to 14 years, and they have already have schools, their tuitions, the other things, and somewhere the online thing is not very well settled with them. So what we are doing right now, we this year we have cut down 5th and 6th. We have started from 8th, 9th, and 10th, which is basically 7th, 8th, and 9th. And then what we will be doing is we will be doing 1 year reverse integration, and will reach in 2 years to grade 5. So that these students who are there with us, which are already on the verge of starting their preparations for the higher standards. So we'll first take them, and then we'll do it 1 year at a time, and then go reverse. So we'll start inshallah for grade 7 next year, and then 6th a year after that. We are really sorry for that, but we want to give them the best of what we can, and that's why we will do it one step at a time. So that's, no problem, that's based on our learning for the year, for 1 year, because you learn a lot of things while you do it.
I And that is understand. what we have perfectly understand, right, sir. realized, and we'll do it 1 year at a time, so that we don't do something which is what do you say, not at par. So my further question is that, let's say if she's in 8th standard in coming time, so will she be benefited for this program because she will be treated as an ex-student of this scholarship program, or anything, any weightage or So I got your question. Anyone who registers for us doesn't become a what do you say, a registry of the previous year. So what happens, the competitive exams is competitive at every level. So we want to keep and give that kind of that kind of system to the students which are there with us as well. So for any exam or any competitive exams you go for, if you have registered for the last exam also, you don't get any benefit over there. So we want to give that kind of treatment here as well. Anytime you register, whether you've registered or done your exams, like the students who were there in grade 8th, 9th and 10th last year, they still have to compete, so that we know that what they have done in 1 year, whether that have benefited them or not, because there is no treatment of in-house students given over here. So anyone who's there with us is all treated equally every year. Sir, I understand And your that's concern, how the but competitive exams work. as it is started as a pilot initiative, or first time they have gone through all the Yes, process and they completed successfully and they got the admission for this scholarship. Yes, sir. So if they are the first person to enter into and enroll in this program, then there should be some special status should be given to them. So that they have the part of the program. They'll get a which was initiated. participation certificate for this, sure, sir. But getting getting them one step ahead would not be fair for the others. I mean, with the others. So let's, and that's a process everywhere for any competitive exam. See, it's not about MaxStars only as an exam. MaxStars is just a platform to give them that kind of exposure that when they go into the market and then they see that there are loads of competitive exams that they have to do, and whether they have registered for it earlier or not doesn't give any importance to them. So they go every time they go afresh. I mean, if they are doing a second attempt or third attempt, even in exams like IAS and IPS, I mean UPSC, it is counted as their, I mean, the treatment is as if they're doing it for the first time only. So that's the kind of treatment, or that's the kind of exposure they need, so that their mind is prepared in a way that whether you are a veteran already or whether you've given the exam already doesn't make any difference. You have to put your 100% and prepare for each and every exams every time. So that's the kind of exposure they should get. No worries, sir. I have 2 kids who are the part of your scholarship program. So my that's daughter very nice. was in 6th standard. That time she opted. That time she was in 5th standard. Now she's in 6th standard. So I have a son. He's also part of this program. So he's doing 10th this year. So he may utilize it for the coming 2 years as integrated program. Yes. We will look forward for him to study hard and get into our scholarship for the residential program. We'll really look. But sir, for the previous year, he haven't received the books, as my daughter received the book for the 6th standard, as she was a part of this program. Okay, just put this concern over the number provided. We'll see what went wrong, and we'll see and get it. So I think it would not be the right time to go for these type of discussions, because the academic years are about to end. So better we could focus more on the coming times, right? For the integrated 2 years program, which is going to happen in coming times. We'll take it as a feedback, sir. But if he was in grade 9, we haven't provided grade 9 with any books. The books was only for grade 5, 6, and 7. 8th, 9th, we haven't given the book because it was a syllabus which was ready. So I think if he was in grade 9, he would not receive the book. So, sir, as you talk about the integrated program, so process will remain the same as it was earlier. You have to register first, and then you have MCQ, and then again you will select it for the personal interviews. Yes. Or is there any change in the process as well? The process is exactly the same, sir. So for let's say if he is in 10th standard now,
and he has to compete for this integrated program. So syllabus would be of 10th standard, or yes, and it is there on the website. All the syllabus is provided over here. So if you can go and then you can see that, you know, on what all the topics they have to provide, prepare for. All right. This is the Thank you syllabus so there much, on the Fazan website. sir. Assalamu alaikum. Khuda Hafiz. Most welcome, and thank you so much for asking so many questions. And it is very Thank you good very that Sir, you know, I we have a have question. parents like Sir, I have a question. yeah. Wait, How many? Sugra, please follow the queue. I am really sorry to ask you that, but Sister Zainab is helping us out with the queue, so No, let sir, her actually, decide. I thought the session is over. That's why, sir, I interrupted. No, it's not over. No, Don't no, worry. no. Don't We worry. will answer all your questions before we leave. Don't worry. Yes, Don't worry. ठीक है. I Shan thought from you are saying Nagpur. Khuda Hafiz, so I thought the session is going to work. No. Shan from We'll Nagpur. be there. Don't worry. Yeah, Shan, please. Hello, Assalamu alaikum, sir. I am Mohammad Shan Reza from Nagpur. I am currently in standard 10th. One question I just have that if on 13th Feb I appear in exam, if I unfortunately by chance not able to qualify in top 30, then what will happen to me if I want to appear in a residential program? See, thing is, let the exam happens. Don't go negatively. You have to prepare. No, sir, by and chance, see but that unfortunately, yeah. Don't go for by chance. That's why, see, that is the first step of giving any competitive exams. You should not prepare for plan B. Your plan A should be qualification. If unfortunately it doesn't happen, we'll see it at that time. Right now, your 1 point agenda or single point goal should be to qualify for the exams. Prepare as much as possible. Don't worry. Don't even bother about what happens next. Your goal should be to get qualified. Don't bother about anything else. If there is a unfortunate time like that, we'll work that out. We'll see if there is any possibility. We cannot commit right now anything, but right now your 1 point goal should be to qualify. Okay, sir. Thank you, sir. Okay. Thank you. Subra Fatima from Lucknow. Yes, sir. I actually wanted to ask that how many stages are there? Like There are two is- stages. Okay, online. First stage is the online exam. If you qualify for that, you'll get, we'll display the result for students who get qualified. If you qualify, you'll go for round 2, which is the personal interviews directly by our qualified teachers. And so when we are going to get the final result? So first exam will be on 13th Feb. Once the exam is done, within 15 days, we'll get the results for stage 1, and then we'll announce the date for stage 2. Okay, But right, as someone said that, we'll keep in mind your boards. So we'll see how we work it out so that your board is not affected. All right. Sayyid Iman Batul Rizvi is asking, ma'am, क्या हमारे class 12 तक continue रहेंगे या exams फिर से देना है? नहीं, एक बार आपने अगर 11th में आपने क्वालिफाई, मतलब आपने 10th में क्वालिफाई कर लिया रेसिडेंशियल प्रोग्राम के लिए, तो फिर आप 2 साल के रेसिडेंशियल प्रोग्राम के लिए क्वालिफाई होते हो. फिर आपको 2 साल एग्जाम्स नहीं देने, आपको 2 साल वहां पे पढ़ाई करनी है और ये इंश्योर करना है कि आपको किसी ना किसी इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस में एडमिशन मिले, आपको उसकी तैयारी करनी. फिर आपको ये मैक्स स्टार के एग्जाम्स के लिए बॉदर नहीं करना है, क्योंकि देन योर गोल इज बिगर. ठीक है? Okay, we don't have any more hands raised. I'm just checking the chat if we have any questions. Chat में I have already put the link of the registration. अगर आप लोग रजिस्टर करना चाहते हो तो रजिस्ट्रेशन का लिंक जो है, वैसे तो वेबसाइट भी जा सकते हो आप लोग, बट रजिस्ट्रेशन का लिंक भी मैंने चैट में डाल दिया है, एंड कॉन्टैक्ट का व्हाट्सएप भी डाल दिया है लिंक. तो आप लोग ये दोनों लिंक्स पर डायरेक्टली क्लिक करके रजिस्टर भी कर सकते हो, एंड अगर चैट करना है, मतलब व्हाट्सएप पे कनेक्ट करना है, तो व्हाट्सएप पर भी कनेक्ट कर सकते हो. Yeah, and if we don't have any more questions, we can. Students, और आप लोग के I don't think कोई questions होंगे. If you, हम लोग जब इंशाल्लाह इसको अपलोड कर देंगे YouTube पे, अनफाल के YouTube चैनल पर जाएगा ये, तो अनफाल फाउंडेशन, तो आप लोग YouTube पर जाकर अनफाल फाउंडेशन सर्च कर सकते हो. नहीं तो इंशाल्लाह वो वेबसाइट पे भी लिंक होगी. अगर वहां पर भी अगर आपको नहीं मिली तो आप व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करके भी लिंक पूछ
सकते हो, मे बी इन अ डे और 2 इट शुड बी अप। एंड आप लोग फिर से वो वीडियो देखोगे तो आप लोग के जो डाउट्स अगर है रिमाइंडर भी कोई भी, तो वो भी क्लियर हो ही जाएंगे इंशाल्लाह। थैंक यू, आई वुड लाइक टू थैंक ऑल आवर स्पीकर्स, फैजान भाई एंड सोहेल भाई एंड शाहिद भाई, शाहिद भाई because of student, and Sohail bhai is still with us. Thank you so much for your time, and we really appreciate Muhammad Faraz for his karat. It was very beautiful. Thank you everyone. Khuda Hafiz. Thank you for hosting this program. This was wonderful, and students, all the best. अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिए। थैंक यू सर। हाँ, पूरों को सब मिलके आगे बढ़ो। Hello. Yes. Yes, sir. Yes, ma'am. Ma'am, how many marks, ma'am, question paper will be there? Like, all those information is there on the website. If you can just go and check. If you don't get it, just put us on a question on the website. I mean, on the WhatsApp number. okay, sir. No We'll problem. provide you the link. Okay. Yes, sir. All right. Okay, thank you. Sir, all the information about the exam, it would be there on website now, so we can check there. Yeah, you check it. If you still have any queries, then you can always ask the questions on the WhatsApp. Okay, sir. Thank you, sir. Khuda Hafiz. Thank you. Khuda Hafiz.